A very refreshed morning and welcome back to everyone. So class, firstly again I'll take this medium of talking and wish you a very happy new year, that as we are meeting for the first time after this winter break, I hope you all have enjoyed your new year, then must have enjoyed your Lohri also, and yesterday was Sankranti, तो आपने वो भी celebrate की होगी, isn't it? So now it's time that we have celebrated, we have lot of celebrations we had, and now get back to your studies, isn't it? Great class. और आप लोगों ने जो holiday homework share किया, that was nice. You all have tried doing it beautifully also, and I appreciate you all for that. After completing your work, you might have enjoyed your holidays and celebrated the festivals. So class, we are resuming our online classes once again. कुछ याद है, कुछ भूल गए, no problem. We'll have revisions also. And class, now it's time. एक छोटी सी बात जो मैम आपसे request कर रही है, whatever work I'm giving you, kindly share that regularly with me. In case you are not able to upload your work on Google Classroom because of any reasons, kindly share your work with me on my WhatsApp. Okay? But share it regularly. Understood class? So class, आज की date. Let's talk about the date first. Today is 15/1/2021. तो अब आप मैम को बताइए कि इस डेट में क्या क्या चेंजेस हुए. जो हमारी डेट थी दैट इज 15, वो तो हम लास्ट ईयर भी चेंज कर ही रहे थे रेगुलरली, बट आपको याद है अर्लियर हम लिखते थे 12 जो प्रीवियस क्लास हुई थी इससे पहले. अब तो हम 1 पे आ गए. व्हाई? क्योंकि अब एक न्यू ईयर स्टार्ट हो गया. यस, इफ यू रिमेंबर हम यहाँ पे लिखते थे 2020, isn't it? But now we are writing 2021. That means 2020 finished. Now it's the first month. New year का पहला month. New year क्या? 2021. And the first month is January. January month हो गया start हमारा, और आज तो उसकी 15 डेट भी हो गई. So the date is 15. See here, 15 January 2021. Yes. तो अब आपको समझ में आई डेट. And what is the day today? Friday. So class, as you all know, on Friday in the first period we have a conversation. So our today's topic of conversation is about those people who are always there for us. अब वो कौन होते हैं? देखो क्लास, बच्चा जब भी हम कुछ भी काम करते हैं, if you are feeling sick, आप बीमार हो, आपको किसकी हेल्प चाहिए? You need somebody to help you. कहाँ जाते हो आप? We visit to a doctor, isn't it? अब मैम is teaching you. आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप किसकी हेल्प लोगे? Sometimes मम्मा, but if ahead आपको वहां से भी नहीं समझ में आया तो आप किससे? अगर आप क्लास में हो and you are not understanding something, तो आप कहाँ जाओगे? To your teacher. आप मैम के पास आओगे. Then we have कि अब मान लीजिए हमारे घर पे कोई शू टूट गया है. आपका स्कूल का जो शू है वो टूट गया है. That needs some type of amendment. उसके अंदर कुछ रिपेयर कराना है. तो अब आप कहाँ जाओगे शू ठीक कराने? मैम तो शू ठीक नहीं कर सकती, डॉक्टर भी शू ठीक नहीं कर सकता, तो हमें कहाँ जाना है? We'll go to a cobbler. cobbler कौन होते हैं? मोची, जो हमारे शूज ठीक करते हैं. We call them a cobbler. हम उसके लिए cobbler के पास जाएंगे. अब another thing, बहुत पहले क्या होता था? Now we have mobiles, telephones, then we have laptops, lot of things we have to talk. But पहले जब ये सब चीजें नहीं थी, we used to write a letter. तो वो लेटर हम नहीं जाते थे देने, हम पोस्ट ऑफिस में डालते थे और वहां से एक अंकल डिलीवर करते थे. Like we have delivery boys now. अब मान लीजिए मम्मा ने ऑनलाइन या पापा ने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया from Amazon or Flipkart
और फ्रॉम एनी ऑफ द शॉपिंग साइट्स, या हमने वेजिटेबल्स ऑर्डर करे या मम्मा ने ग्रोसरी ऑर्डर करी है, सो देयर इज समबडी हु कम्स एंड डिलीवर इट। वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको जाना तो नहीं पड़ रहा, दे आर कमिंग टू योर प्लेस एंड दे आर डिलीवरिंग दैट थिंग। वो आपकी जो रिक्वायरमेंट का सामान था आपने उन्हें कॉल करके बताया, बट आपको घर पे देने आ रहे हैं, दे आर हेल्पिंग यू, इजंट इट? आपको तो नहीं जाना पड़ता, मम्मा पापा तो नहीं जाते, एक अंकल आते हैं वो डिलीवर करके चले जाते हैं। लाइक दिस ओनली देयर आर मेनी लॉट ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल, घर पे मम्मा ने कोई डोमेस्टिक हेल्प के लिए आंटी लगाई होंगी, वी कॉल देम मेड, इजंट इट? जो मम्मा को किचन वर्क में, क्लीनिंग वर्क में हेल्प करती है। सो दे आर हेल्पिंग अस, इजंट इट लाइक दैट? सो जो भी लोग सोशली या कम्युनिटी के अंदर हमें हेल्प करते हैं, वी कॉल देम सोशल हेल्पर्स और कम्युनिटी हेल्पर्स। क्या कहते हैं हम उनको? हेल्पर्स बोलते हैं, सोशल हेल्पर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम सच हेल्पर्स जो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, एंड दे आर हेल्पिंग अस इन सम और द अदर वे। और पता है उनकी हेल्प के बिना वी आर रियली नॉट एबल टू लिव अ स्मूथ लाइफ। अब अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे, आप बीमार हो तो कैसे काम होगा? यू वोंट बी। अब मान लीजिए मैम नहीं है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, आपको कौन पढ़ाएगा? हु विल टीच यू इफ अ टीचर इज नॉट देयर? शू टूट गया, बट वो शू आपको बहुत पसंद है, यू डोंट वांट टू चेंज इट, और वो ठीक हो सकता है, देन यू विल गो टू अ कॉबलर, बट मान लीजिए कॉबलर अंकल नहीं है, देन हाउ विल यू डू इट? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम सच हेल्पर्स एंड वी विल सी how and in what way they are helping us. Okay, so let's see and learn about some social helpers. Okay class? So class, now let us understand first what are social helpers. Can you see, social helpers are those people who are committed to help others in their need. मतलब जब भी हमें नीड होती है ये लोग हमें हेल्प करते हैं, एंड दे लिव विद अस ओनली इन आवर कम्युनिटी, यानी कि ये हम में से कोई एक होते हैं। क्लियर? एंड दे हैव स्पेशल यूनिफॉर्म्स, एज वी नो डॉक्टर्स की अलग होती है, प्लम्बर की अलग होती है, सो वील अंडरस्टैंड दैट वन बाय वन। एंड ऑल दीज सोशल हेल्पर्स दे हैव सम स्पेशल टूल्स। हर सोशल हेल्पर का अलग टूल होता है। नाउ दैट ऑल्सो आई टीच यू। अब ऐसा तो नहीं है कि मैम भी सिरिंज से पढ़ाती हैं और डॉक्टर भी आपको सिरिंज यूज करते हैं, नहीं ना। सो एवरी सोशल हेल्पर हैज अ डिफरेंट यूनिफॉर्म, टूल, and some of the social helpers they use special vehicles to help us, like we have doctors, they use ambulance, then others. So now let us understand about them one by one. So the first social helper about which we are going to learn and understand is a doctor and nurse. So can you see here a doctor and a nurse? Now a part of these, आप इनके साइड में ये टूल्स देख रहे हैं, what type of things they use? This is a first aid box in which they keep their medicines, essential bandages. जब भी कभी हमें चोट लगती है तो they use these kind of boxes. And you know, if you will ask your parents, अगर आप मम्मी पापा से पूछेंगे, you can see a first aid box at your home also. तो आप सब आज मम्मी पापा को बोलना, they'll show you that. Okay? Next we have is medicines. आपको पता है जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, when we fall sick, हम बीमार हो जाते हैं, they give us lot of medicines. Then they have stethoscope. What is this? It's a stethoscope. आपने देखा होगा आपकी breath चेक करने के लिए they use this. Now can you see this nurse, or you can call it doctor? They keep on hanging it like this in their neck. उनकी neck में होता है. Then what they do, ये ear plugs को ear में लगाते हैं and they use it. Then they have syringe, or you can say injection. Then they use thermometer to check your temperature. Then फिर जब बहुत ज़्यादा कोई बीमार होता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, then they give these kind of medicines. वो उनको इंजेक्ट करते हैं. Clear?
So this is doctor and nurse and they help us in taking care about our health. हमारी health का ध्यान रखने में वो हमारी help करते हैं. Understood? Next, a policeman. So अब आप मुझे बताइए हम पुलिसमैन से हेल्प क्यों लेते हैं? ऐसा क्या होता है जो हमें पुलिसमैन की हेल्प लेनी पड़ती है? You must have seen some of them. तो जब भी हमारी कभी किसी से लड़ाई हो जाती है या हमारे घर में कोई चोरी होती है, we go and ask help from these policemen. अब ये कहाँ मिलते हैं? We can see them in police station. इन लोगों की एक स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं पुलिस स्टेशन. लाइक डॉक्टर्स के लिए हमें हॉस्पिटल जाना होता है. सो इफ वी नीड हेल्प फ्रॉम दीज पुलिसमैन, हमें कहाँ जाना पड़ता है? पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है. एंड देयर दे आर सिटिंग एंड दे हेल्प अस इन कैचिंग द थीव्स. और कोई भी लड़ाई होती है, कहीं पे कोई फाइटिंग होती है, तो ये हमें उसमें प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ टूल्स हियर. दे हैव गन्स, दे हैव स्पीकर्स. ये क्या है? हैंडकफ्स हैं जो चोरों को पकड़ने में काम आते हैं. देन दे हैव दिस टाइप ऑफ सायरन्स ऑन देयर जिप्सीज. क्लियर? टॉर्च टू सी एट नाइट. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स or the tools that a policeman use. Next we have is a different type of a policeman, that is traffic policeman. आपने देखा होगा जब भी आप मम्मी पापा के साथ कार में घूमने जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, you must have seen कि जहाँ पे 4 वे होते हैं, जहाँ पे वो ट्रैफिक लाइट लगी होती है, वहाँ पे इस तरह की यूनिफॉर्म में एक अंकल होते हैं who stops the traffic. कहीं पर वो स्टॉप करते हैं, किसी को जाने के लिए बोलते हैं. So that person is called a traffic policeman. तो ये क्या करते हैं? They control the traffic. जब भी कभी ट्रैफिक जैम हो जाता है या बहुत सारी गाड़ियों का रश होता है, तो they are the one who help everyone to go. Understood? उस ट्रैफिक जैम को खत्म करने में, सबको स्मूथली गाड़ियां लेके जाने में, these are the one who help. Secondly, if you are violating some rules, आप कोई रूल तोड़ रहे हो, आपने नो पार्किंग वाली जगह पे कार पार्क करी है, तो यही ट्रैफिक वाले अंकल आपको चालान भी करते हैं. Isn't it? Okay, next we have is a teacher. So class, you all know, as you all are taking online classes, मैम आपको पढ़ाती हैं. आपने देखा भी होगा मैम is using so many things. मैम आपको कभी टीचिंग एड्स दिखाते हैं, कभी मैम इनमें से आपको कितनी सारी चीज़ें आप यूज़ भी करते हैं. लाइक वी यूज़ बुक्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, शार्पनर्स एंड लॉट ऑफ स्टेशनरी, है ना. तो ये सब हम कैसे करते हैं? जब मैम आपको यूज़ करके दिखाती हैं, उसी के बाद आप यूज़ कर पाते हैं. सो मैम इज़ ऑल्सो यूजिंग ऑल दीज थिंग्स. लाइक जब मैम आपको पढ़ाती हैं, आपने देखा होगा मैम इज़ यूजिंग बोर्ड. देन वर्क कराते टाइम मैम बुक्स को यूज़ करती हैं, पेंसिल्स, इरेजर्स एंड ऑल दीज थिंग्स वी यूज़. इजंट इट? सो टीचर इज़ अगेन अ सोशल हेल्पर. वो कैसे हेल्प कर रही हैं? दे आर एजुकेटिंग यू. वो आपको पढ़ा रही हैं, आपको व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, इसके बारे में समझा रही हैं. अच्छा बुरा भी मैम ही बताती है ना आपको. सो टीचर इज ऑल्सो वन ऑफ द सोशल हेल्पर. नेक्स्ट वी हैव इज अ हेयर ड्रेसर और यू कैन कॉल अ बार्बर. देखो हेयर ड्रेसर हम बोलते हैं फॉर लेडीज एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जेंट्स तो हम उनको कहते हैं बार्बर. अब वो क्या करते हैं? वो हमें ग्रूम करते हैं. अब बॉयज हैं, बॉयज गर्ल्स की तरह लॉन्ग हेयर तो नहीं रखते. सो जब भी उनके हेयर लॉन्ग हो जाते हैं, दे हैव टू गेट देम ट्रिम्ड. इजंट इट? अब मम्मा को कहीं पार्टी में जाना है या किसी को भी, व्हेनेवर वी गो टू पार्टी वी वांट टू लुक स्मार्ट, तो हम अपने हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं. आंटी हमें कितने अच्छे से हेयर ड्रेस करती हैं एंड शी गिव्स अप सच अ नाइस लुक टू अस. सो हेयर ड्रेसर एंड बार्बर अगेन दे आर अ सोशल हेल्पर्स. अब वो नहीं होंगे तो सब गंदे गंदे हेयर्स होंगे ना हमारे सिर पे. अब गंदे हेयर होंगे तो क्या होगा? वी विल नॉट लुक स्मार्ट. तो स्मार्ट लगने के लिए आप भी जाते हो ना मम्मा के साथ हेयर ड्रेसर के पास या पापा के साथ बार्बर अंकल के पास टू गेट योर हेयर ट्रिम. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज cobbler, cobbler, mend my shoe, get it done by 2:30. So it's a very famous rhyme, है ना. क्या क्या करने जाते हैं हम कॉबलर अंकल के पास? टू गेट आर शू रिपेयर्ड. आपका स्कूल शू है या आपका कोई पार्टी वेयर शू है, अगर वो खराब हो गया एंड यू वांट टू गेट इट रिपेयर्ड, व्हाट यू डू? यू गो टू अ कॉबलर. अब कॉबलर अंकल तो होंगे नहीं, तो हम उसे डॉक्टर से रिपेयर तो नहीं करा सकते ना.
हमें अंदर अगर वी नीड सम मेडिसिन तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं. क्या हमारा शू डॉक्टर अंकल रिपेयर कर सकते हैं? नो. फॉर दैट वी नीड हेल्प फ्रॉम अ कॉबलर. तो हम कॉबलर अंकल के पास जाते हैं. तो आप अभी कभी भी कॉबलर अंकल के पास विजिट करा होगा, सो यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस. शूज रखे होंगे, इस टाइप के शूज के कटआउट्स होंगे वहां पे उनके पास. विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स दे मेंड द शू. ओके. Next is a postman or a delivery boy. See class, nowadays it's very rare to see a postman because we have lot many facilities. हम मोबाइल पे बात कर लेते हैं, emails, letters, हम लोग ये emails भेज देते हैं, WhatsApp messages, we have lot many facilities. But in the earlier time, जब हमारा पहले के टाइम में हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स नहीं थे, तो क्या करते थे, हम लेटर लिखते थे, पोस्ट बॉक्स में डालते थे, और पोस्ट बॉक्स से वो लेटर कौन कलेक्ट करता था? पोस्टमैन अंकल. और फिर उस पर जो एड्रेस लिखा होता था वो अंकल उसको उस एड्रेस पर डिलीवर करते थे. इस तरह से हम अपने फ्रेंड्स से बात किया करते थे. बट नाउ इट्स वेरी इजी, यू ऑल कैन टॉक ऑन वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग, isn't it? So one is the postman. But nowadays अगर आप देखेंगे you will find delivery boys. वो जो Amazon, Flipkart, जितनी भी शॉपिंग साइट्स हैं, बिग बास्केट है, ग्रूफर्स हैं, कितनी सारी शॉपिंग साइट्स हैं. अगर आपको कोई सामान चाहिए तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ कॉल करते हैं, हमें जाना तो पड़ता ही नहीं है. isn't it? मम्मा ऑनलाइन सारा सामान बुक करती हैं और फिर क्या होता है, वो पैकेट डिलीवर कौन करने आते हैं? डिलीवरी बॉयज. अंकल आते हैं ना आपके घर पे पैकेट डिलीवर करके. दैट मीन्स अगेन आपको हेल्प हो रही है कि आपको अपने घर से तो कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा. इफ एनी टाइम यू वांट टू ऑर्डर सम फूड, अगेन यू विल गेट सच काइंड ऑफ अ पर्सन हैविंग दिस बॉक्स ऑन द स्कूटर एंड दे आर कमिंग टू योर होम. सो डिलीवरी बॉय इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल हेल्पर जो हमारी चीज़ों को टाइमली हमारे पास पहुंचाते हैं. वट एवर वी नीड हम क्या करते हैं, बस ऑनलाइन शॉपिंग करी एंड वी आर सिटिंग एट होम रिलैक्स. रेन है, सनी है, ठंड है, वट एवर द वेदर इज, दे ऑल आर कमिंग टू हेल्प अस. इजंट इट ग्रेट? ओके, द नेक्स्ट हेल्पर वी हैव इज अ स्वीपर. सो कैन एनीवन टेल मी हु इज अ स्वीपर? द वन हु क्लीन्स द स्ट्रीट. हमारे घर के बाहर जितना भी डस्ट होता है, कभी कोई कूड़ा होता है, वो सब कौन क्लीन करता है? स्वीपर अंकल आते हैं या आंटी आती हैं. दे हैव बिग ब्रूम्स लाइक दिस. उनके पास बिग बिग झाड़ू होती है ना, ब्रूम इस तरह से. एंड दे क्लीन द स्ट्रीट एंड व्हाट दे डू देन, दे कलेक्ट ऑल द गार्बेज एंड दे गो. अब आप सोचिए, अगर वो अंकल आंटी नहीं होंगे तो क्या होगा? सारा घर के बाहर डर्ट होगा, गंदा होगा, लॉट ऑफ फ्लाइज, और फिर हम बीमार हो जाएंगे. विल फॉल सिक. इजंट इट? और बीमार होके फिर कौन से सोशल हेल्पर के पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास. सो टू अवॉइड दैट क्या करते हैं, स्वीपर अंकल पहले से ही आके सब क्लीनिंग करते हैं. तो अगेन ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इजंट इट? ही इज हेल्पिंग अस टू कीप आवर एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन. ओके. Now next we have is a plumber. Who is a plumber? Okay, आप अपने घर में आपके पास वॉशरूम में टैप्स है ना, you know how to operate a tap. अब मान लीजिए उस टैप में से वाटर नहीं आ रहा है या वाटर का फ्लो कम है. So how will you get it repaired? You have to call a plumber. आप देख रहे हैं ये अंकल इसमें सिंक में या वॉश बेसिन में ये टैप को रिपेयर कर रहे हैं. एंड दीज टाइप ऑफ टूल्स आर यूज्ड बाय देम. They use such tools to get these water taps, to get all your water fittings repaired. Is that clear? Next we have is a maid. Now, who is a maid? Can you tell me? आप इस पिक्चर को देख के बता पा रहे हैं क्या कर रहे हैं ये? The one who help at our home, school. एक आंटी होती है स्कूल में जिनको हम दीदी बोलते हैं, घर पे भी आती हैं, जो मम्मा की हाउस के वर्क में, आपके डोमेस्टिक वर्क में मम्मा को हेल्प करती हैं, लाइक क्लीनिंग होम, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, क्लीनिंग क्लोथ्स. इजंट इट? आप देख रहे हो ये आंटी मम्मा को कुकिंग में भी हेल्प करती हैं. समटाइम्स दे हेल्प इन क्लीनिंग यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, होम. सो
वो जो आंटी हमारे घर आती हैं, या समटाइम्स वी कैन सी दैट आंटी इन आवर स्कूल ऑल्सो, उनको हम क्या कहते हैं, मेड. अब अगर वो नहीं होंगी एंड मम्मा इज ऑल्सो बिजी, शी इज नॉट एबल टू डू द वर्क, देन वॉट विल हैपन? सारा घर डर्टी होगा, सब कुछ मिसमैनेज होगा, इजंट इट? सो अगेन दिस आंटी और दीदी इज ऑल्सो important. Maid is also an important social helper, isn't it? So class, we have learnt about lot of social helpers, isn't it? Now what you have to do, you have to just revise it once again, and then I'll tell you about some more. So class, I hope you have understood how these people are really important in our life, what type of important role all these different helpers are playing and helping us in what all different ways. अब आप एक मिनट के लिए इमेजिन करिए कि इनमें से कोई भी नहीं है, then what will happen? अगर गार्डनर अंकल नहीं है तो there will be no greenery, oxygen, fresh air, कुछ नहीं होगा. So it's all गार्डनर अंकल की हेल्प से मिल रहा है हमें. Then if green grocer uncle, vegetable seller will not come, vegetables कहाँ से आएंगे आपके पास? फार्मर नहीं होंगे तो vegetables, crops grow कौन करेगा? So each and every person is playing an important role in our life, and all these are called social helpers or community helpers. Okay? So class, again you have to keep watching this video once or twice in today, or you can say tomorrow, and day after tomorrow is your holiday. So you have to, so that you can keep revising about these different helpers. Acha, this is about all together, but we will be doing one by one for them also. Okay, bye for now, take care and get ready for the next class.